भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे स्टूडियो में टीम भारती न्यूज़ के पास आज स्टूडियो में आए हैं एक बहुत ही बड़े डिग्निटरी। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी और आपको पहले मैं मिलवाऊंगी अपनी इस डिग्निटरी से। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय विद्यापीठ मतलब भारतीय विद्यापीठ भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ने आज ऑर्गेनाइज करा है 17th एडिशन ऑफ इंडिया कॉम 2023, जिसकी थीम है कंप्यूटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम अपने आप में ही इतनी उच्च है और यहाँ पे जो डिग्निटरीज आए हैं उनका भी कोई कहना ही नहीं है दोस्तों। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी और आपको मिलाती हूँ अपने खास डिग्निटरी से और करते हैं उनसे खास बातचीत। हेलो सर, ये है हमारे साथ प्रोफेसर AK सिंह सर, जो आज हमारे स्टूडियो में सीधा डायरेक्ट हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सर, आप काफ़ी समय से, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, पहले तो मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे प्रोफेसर AK सिंह सर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले नियर अराउंड 34 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। इट इज़ मोर देन लाइक अ डिकेड ओनली, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी। और सर ने सिर्फ यही नहीं, बहुत जगह अपनी छाप छोड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इंडिया कॉम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे भी सर सिंस इंसेप्शन आई थिंक 17 ईयर्स अराउंड से जुड़े हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे, वो पहले दिन की जर्नी से ये 17 साल, कैसा अनुभव है आपका? Thanks for nice introductions. Really, I have been associated this IndiaCom by 2007 onwards, since its inception, you may say it. But really, it is very proud moment for me today to see the coordinator and the main person who is behind the screen, Professor Yaman Hoda. He is not only really the asset for the Bharati Vidyapeeth, but he is also role model for the faculties, young researcher, as well as student of the Bharati Vidyapeeth, for inspiring all to learn everything since organization of the workshop, conference, expansion and important areas on different themes. I am very glad that the theme of the conference, IndiaCom for Sustainable Global Development, and while presenting the findings of the IndiaCom since 2007 to till date, I have seen the kind of extension, expansion, as well as exponential growth, exactly, which means the sustainable development goal for inclusive growth to achieve the sustainable development goal of the UN Agenda 2030, as well as achieve the Millennium Developmental Goals. The kind of topics which have been included in this particular conference are very, very relevant and important. Like this is the time of Industrial 4.0 revolution all over the world, where machines are going to play very, very important roles. Either it may be the large scale mapping by drone, or it may be the driverless car, or robotic surgery, or anything what you imagine in this world today are definitely being covered by the very, very important topic of the concern for national development, like interdisciplinary cyber physical system, artificial intelligence, deep learning, machine learning, 5G, quantum computing, supercomputing. Earlier the theme of the conference was computing for the national development. But today see the kind of extension and representations by each state of the country in this particular conference. Not only the representation of the states, but putting the coordinates outside the country, almost about many part of the world, top level people
working in the computings, simulations, modeling, applications, information technology. This is a really very commendable and big achievement made by the very small college of the Bharati Vidyapeeth. It is uncommandable task did by the Professor Yaman Hoda. Really, we are very, very proud that we should need more people like this to expand the program of the important concern in the country for global development. It is not only the India calm, but it should be, it is tending towards global calm or world calm. बिल्कुल सही कहा आपने सर कि आपने इसके एक्सपेंशन ग्रोथ सब चीज़ों को विटनेस करा. इट इज़ लाइक अ बेबी ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू दिस लेवल. सो ये तो रियली बहुत कमेंडेबल है. और मैंने भी जाना कि इस लिगेसी में, इस जर्नल में अपने पेपर्स को या अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दी क्वालिटी. दिस इज़ व्हाट दे मेंटेन. तो आप इसके लिए आगे कोई सजेशंस या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? हम तो बहुत ही खुश हैं कि देख के इन्होंने ऑलरेडी इस पे काम कर लिया है और जो इसका वॉल्यूमिनस जॉब जो है अभी दो जर्नल्स निकाल रहे हैं अपने यहाँ से, इंटरनेशनल जर्नल्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑन मल्टीडिसिप्लिन जर्नल्स. तो एंड दे आर वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स and really it's a very good job, and all the research findings. I am also very much surprised and happy to see the kind of speech made by Professor Agrawal that we should motivate and inspire the younger UG level students. Because I have also heard very recently by some of the top level speakers from the US that $600 million are being spent for research for the undergraduate level in the US, whereas in India we don't have such facility. The person like Professor Yaman Hoda will definitely take the cause what made concern today by the chief presidential address by Professor K.K. Agrawal to energize, motivate UG level young student to come forward for promotion of the research and doing the transnational research for growth of the national development and making India proud and Atmanirbhar Bharat by the slogans of Honorable Prime Minister. आत्म मंथन, आत्मचिंतन भी करेंगे तो आत्मनिर्भर भी बनेंगे और हम रिसर्च में एक विश्व में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकेंगे. बहुत बहुत थैंक यू सर आपकी इतनी शुभकामनाओं के लिए. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने इनॉग्रल सेशन में विटनेस करा कि भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ने एक नया इनोवेशन इंक्यूबेशन लाया और IGRMS आई मीन रिसर्च इन मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेस की भी शुरुआत करी. तो ये भी अपने आप में एक ऊंचाइयों पे जाने वाला ही सवाल है और पहले कंप्यूटर साइंसेज में वो एक ऊंचाई पर पहुंचे और अब उन्होंने एक नई शुरुआत करी है. तो इस इनिशिएटिव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जब एक छोटे से कॉलेज में प्रोफेसर होडा साहब इस तरह की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं. हमारे पास तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और बहुत सारे संस्थान हैं पूरे देश में. अगर इस तरह की सीख लेके, प्रेरणा लेके अगर इस तरह का काम करते रहें तो हम कितनी तरक्की करेंगे, वी कांट से इन वर्ड्स. थैंक यू सो मच सर. और मुझे भारतीय विद्यापीठ के मैनेजमेंट से भी पता लगा कि इस ऊंचाई तक पहुंचने में आपका भी बहुत सहयोग रहा है. तो मैं चाहती हूं कि आने वाले वर्षों में आप अपना सहयोग बनाए रखें और हम साथ ही इन ऊंचाइयों को छुएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर. थैंक यू. मुझे लगता है कि सहयोग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगन और कर्मठ व्यक्तित्व. तो जो होडा साहब ने चीज़ों को कैसे कैसे स्टेप वाइज, जो मैंने पहले भी कहा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और क्वालिटी को कितना आगे ले गए हैं. और जो जर्नल्स वगैरह भी निकाल रहे हैं उनके हाई इम्पैक्ट फैक्टर हैं एंड इट इज़ ऑलरेडी साइंस साइटेशन इंडेक्स में है सारे के सारे. तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काज ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री टू लर्न द यंग फैकल्टी एज वेल एज द स्टूडेंट्स कि क्वालिटी रिसर्च, not garbage in, garbage out. We have to
work on the quality and high impact factors, and we have to compete globally. What is happening worldwide, how to reach there, this is the important to motivate and energize our new generation people. मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन को आपका ये मैसेज मिले और इंडिया कॉम फेटर्निटी को भी ये लिगेसी विद क्वालिटी रिसर्च के साथ कंटिन्यू करने की और बढ़ोतरी मिले और उनको ज़ील आए कि इतना अप्रिसिएशन के बाद वो इसे लेगेसी को कंटिन्यू करें। तो मैं एक और कहना चाहूँगा कि इन सबको करने के लिए प्रोफेसर हुडा जैसे व्यक्तित्व और व्यक्ति चाहिए जो कि इस तरह की चीज़ों को जहाँ पे भी जिस संस्थान में हैं उसको इतनी कर्मठता और लगनशीलता के साथ करें कि देश का विश्व में नाम जो है रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी इस स्पेशल शो से हुडा सर के पास ज़रूर ये मैसेज जाएगा और उन्हें भी एक बूस्टअप मिलेगा कि आप उनकी इतना ज़्यादा आप से कर रहे हैं और आपने उनको इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे इतना ज़्यादा रिकमेंड करा। हमें समय देने के लिए धन्यवाद सर।